Okay, good morning, everyone. So, in today's class, we're going to start with chapter number one, relation and functions, the chapter which you already did in class 11th. But in class 11th, we were only introduced what is a relation, what is a function, and how to identify whether it is a relation or a function. Now, in 12th class, we'll be talking about the types of relation and the types of functions. I'm sure everyone is able to recall the idea of the domain and codomain and altogether with the range of a function. So these are the basic ideas which are assumed that you know. So quick recap of what is mean by a relation. A relation R in a set A is a subset of A cross A. What does that mean? Here I considered only set A to A, but in general, there is say a set A, there is a set B. So we say any subset of A cross B, any subset of A cross B is known as relation from A to B. For example, let's say you are given with A as 1, 2, 3 and B as A comma B. Then the Cartesian product of these two non-empty sets is defined as 1 with A, 1 with B. Then 2 with A, 2 with B. And then 3 with A and 3 with B. Now you consider any subset of this A cross B. Any subset. So any subset could be, say simply 1 comma A, taking one element at a time. So R1, R2 and so on, R6 इस तरह से form हो जाएंगे. Then we may have some relation like taken any two at a time and so on. Then taking any three at a time, taking any four at a time, taking any five at a time, and all six at a time. So that would be the largest possible relation. Also remember, phi is a subset of every set. So phi is the smallest possible relation from A to B. So this is 1, 2, 3, and this is A, B. That was a given situation. So using the arrow diagram, we understood the idea of the domain, codomain, and range of a relation. Please check out this example here. Left hand side, domain and range of a relation. So whenever some relation is written, this is a set builder form and this is the roster form. ये याद आ जाएंगी टर्मिनोलॉजी सुनने के बाद. तो ये रोस्टर फॉर्म में इफ सम रिलेशन इज गिवन, द फर्स्ट एंट्री 1, 2, 3, 4, this refers to the domain, and the second entry 1, 4, 9, 16, second entry will refer to the range.
सो डोमेन तो हो गया पहले वाला सेट, जो भी एलिमेंट यहां से यूज हो रहे हैं. कोडोमेन is always fixed. Second set is always the codomain. So this is a quick review what we did in class 11th. Also, total number of possible relations क्या होते हैं? Total number of possible relations is given by 2 की power mn, where m क्या है? This is the cardinality of set A, number of total elements उसको cardinality कहते हैं, and n is the cardinality of set B. Recall this formula. So in this example, जो मैंने ऊपर ये डायग्राम में बनाया है एरो डायग्राम से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हो गए? 2 की पावर, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं. 3 into 2, 2 की पावर 6, which is 64. तो मैंने तो सिर्फ R1, R2 थोड़े लिखने स्टार्ट करे थे. एक्चुअल में 64 such possible relations can be defined from the set A to B in our example. But no one is going to ask this type of a question. आपके पास सिंपल एक डेफिनेशन दिया होगा, उसे देखकर डोमेन को डोमेन एक्सेट्रा जजमेंट करना आना चाहिए. Now, as I mentioned, ये सब तो पीछे की चीजें 11th की ही थी, जस्ट ए क्विक रिव्यू हुआ है. अब जो 12th सिलेबस की बात करेंगे, दैट इज अबाउट द टाइप्स ऑफ रिलेशंस. So there are 3 main types of relations. Let A be any non-empty set. A relation R on A is said to be reflexive, symmetric and transitive. तो ये 3 नाम हैं, आपको विद देयर कंडीशन एंड डेफिनेशन याद करने हैं. तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ A comma A belongs to that relation. For every A belongs to the set A. सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्री होना. A टू B अगर रिलेशन R में है, अगर ये इंप्लाई कर दे B टू A भी इस रिलेशन में है, 1, 2 that is in my relation. If this imply that 2, 1 is also in my relation, it will be symmetric. ट्रांजिटिव में A टू B रिलेशन है, B टू C रिलेशन है. अब ये 2 कंडीशंस आपको गिवन है. A टू B गए, B टू C गए. अगर ये फाइनली इंप्लाई कर दे A टू C इज ऑल्सो ट्रू, A टू C is also in that relation, then it is transitive. ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांसफर करना. तो A से आप अगर यहां ध्यान से नोट करें, A से B में ट्रांसफर हुआ, एक तरह से लॉजिकली सोचिए. फिर B से C में हुआ, और फाइनली इसका मतलब अगर सीधा आ जाए कि A से C में हो रहा है, A टू C, then it will become a transitive relation. And a relation which is all 3, reflexive, symmetric and transitive, that is known as an equivalence relation. So to a relation becomes equivalence, it should be all 3. Let me consider one simple example. इसे बहुत ध्यान से समझिएगा. पहले सिंपल एक मैथमेटिकल मैं लेता हूं. मान लो मैंने लाइंस जितनी भी हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में. 2 डायमेंशनल प्लेन का मतलब आपका नॉर्मल XY प्लेन है, और उसमें इन्फिनिटली मेनी लाइंस हैं. मैंने उनमें से रिलेशन क्या डिफाइन करा लाइंस के बीच में?
What relation is defined? Is parallel to line 1, line 1 पैरेलल टू लाइन 2। मैंने सिर्फ ये रिलेशन डिफाइन कर दिया। तो अब आपको यहां क्या सोचना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या सोचना है, ए कॉमा ए कॉमा ए का मतलब L2 की जगह L1 लिख दो। तो इज इट ट्रू और फॉल्स? इज द लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ? दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू थिंक। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू होगा। इट इज ट्रू, लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसीलिए ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट क्या सोचना है, सिमेट्री का मतलब क्या था, ए टू बी गिवन है, इसका मतलब L1 इज पैरेलल टू L2। क्या इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, L2 इज पैरेलल टू L1? ऑफ कोर्स दिस इज अगेन ट्रू, तो इट इज सिमेट्रिक। थर्डली सोचिए, मैंने कहा ए टू बी ट्रू है, ये रहा ए टू बी का मतलब L1 L2 के पैरेलल है, और L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। ये अब इससे क्या इंप्लाई हो रहा है कि फर्स्ट वाला थर्ड के पैरेलल है। इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। One can easily note L1 is parallel to L2 और L2 is parallel to say L3। इसका मतलब ये और ये भी तो पैरेलल हो गए। सो इसका मतलब जो मैंने रिलेशन बोला था लाइंस के बीच में इन द सेम प्लेन इज पैरेलल टू, वो हो गया है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट मी मॉडिफाई द सिचुएशन। अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस एग्जांपल से लगता है कि ये तो ऑब्वियस है कि हर एक रिलेशन इस तरह से शायद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा। सिर्फ इतना सा चेंज कर देते हैं। अब इंस्टेड ऑफ लाइंस टू बी पैरेलल, लेट मी कंसीडर दे आर परपेंडिकुलर। अब इसके बारे में क्या सोचते हैं, इज इट रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव का मतलब इज द लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L1? क्या लाइन अपने ही परपेंडिकुलर होती है, ये आपको सोचना है। क्लियरली दिस इज नॉट ट्रू, लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड पार्ट, L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, क्या ये इंप्लाई करता है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, विच इज ट्रू, सिमेट्रिक हो गया। व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव में क्या हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। क्या इससे ये इंप्लाई हो रहा है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3? सोच के देखिए, दिस इज नॉट ट्रू। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये देखिए यहां पर, चलिए L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर हुए? In fact, they will be parallel, not perpendicular. Hence, it is not transitive. तो एक भी कंडीशन तीनों में से अगर फॉल्स हो जाए तो क्लियरली दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसिडर वन अनदर एग्जांपल। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं रियल लाइफ में
इज अ ब्रदर ऑफ, तो ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। कुछ इस तरह से रिलेशन डिफाइन कर दिया, और रिलेशन का मेन हेडिंग मैंने क्या दिया है, इज अ ब्रदर ऑफ। तो सोच के बताइए, इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव? रिफ्लेक्सिव में आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या सोचना है? इज ए इज अ ब्रदर ऑफ ए? नॉट ट्रू। ए इज अ ब्रदर ऑफ ए। चेक करिए, दिस इज नॉट ट्रू, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाट अबाउट सिमेट्रिक? सिमेट्रिक का मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ये हमें गिवन है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि बी इज अ ब्रदर ऑफ ए? इज इट ट्रू और फॉल्स? एनीवन? false है। दिस इज फॉल्स। A is a brother of B doesn't imply that B is a brother of A, क्योंकि B can be a sister as well। तो यहां कॉमन सेंस ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, आप सोचिए इस चीज को ध्यान से। सिमिलरली ट्रांजिटिव है या नहीं है? क्या मतलब, आपने क्या सोचना है, ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो क्या ए सी का ब्रदर होगा? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सोच के देखना, क्योंकि ए जो है वो मेल हमने डिफाइन कर दिया है, ए को ब्रदर कह दिया है, तो ए इज अ मेल। तो ए टू सी की जब बात करेंगे, अब सी जो है वो मेल है, फीमेल है, ब्रदर है, सिस्टर है, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन क्या बना, इज ए अ ब्रदर ऑफ सी? तो यस, ए तो मेल है तो ब्रदर रहेगा। तो ये जो मैंने रिलेशन बोला था, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव हो गया। चेक आउट वन अनदर एग्जांपल। अब थोड़े मैथमेटिकल एग्जांपल्स को देखते हैं। पढ़िए एक बार ध्यान से, वेटिंग। Let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by सिंपल रिलेशन आपको देखो डिफाइन करा है, T1 T2। ये एक रिलेशन कैसे है कि T1 इज कॉन्गुरेंट टू T2, ये दो ट्राइंगल्स हैं, राइट? तो आप ऐसे ट्राइंगल है तो ऐसे भी नोटेशन सोच सकते थे, कुछ ऐसा दिया है, तो ट्राइंगल्स कॉन्गुरेंट हैं, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया, अब तो कह ही दिया गया है कि इक्विवेलेंस है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, सोच के देखिए क्लियरली, ट्राइंगल वन जो है वो अपने खुद के कॉन्गुरेंट होगा, दे आर द रेप्लिका और द कॉपी ऑफ ईच अदर। तो T1 इज कॉन्गुरेंट टू T1 का मतलब T1 कॉमा T1, ये बिलोंग कर गया इस रिलेशन में, T2 की जगह T1 आ गया।
तो T1 comma T1 belongs to R. This imply R is reflexive. For symmetric, आपको कैसे स्टार्ट करना है? Let T1 comma T2 belongs to R. और अल्टीमेटली क्या शो करना है? T2 comma T1 belongs to R. अब अगर T1 comma T2 belongs to R हो गया, ये इस रिलेशन में आ गया, इसका मतलब T1 is congruent to T2. डोंट यू थिंक सो? इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूं, अगर T1 congruent to T2 है तो T2 will be congruent to T1. T1 और T2 इंटरचेंज हो गए, इंटरचेंज कर दो T1 और T2 को, तो इसका मतलब T1 और T2 इंटरचेंज हो गए. दिस बिलोंग्स टू R और दिस इंप्लाई R इज सिमेट्रिक. कुछ चीजें देखने में ऑब्वियस लगेंगी, बट वही है कि उनको प्रेजेंट कैसे करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि ट्रांजिटिविटी ऐसे है, सोचना बहुत आसान है. फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड के कॉन्गोरेंट है, सेकंड ट्राइंगल थर्ड के कॉन्गोरेंट है. क्या फर्स्ट वाला थर्ड के कॉन्गोरेंट होगा? तो हमें पता है आंसर इज यस. हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट? तो उसके लिए ये नोटेशंस, लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R. पहले वाले से मुझे ये मिल गया और दूसरे वाले से डेफिनेशन से क्या मिलेगा कि ये आपस में कॉन्गुरेंट है. इसे 1 कहा, इसे 2 कहा. फ्रॉम 1 and 2 clearly T1 is congruent to T3. दोनों में ये T2 कॉमन आ गया. और दिस इंप्लाई, अगर ये डेफिनेशन ऐसे लिखी गई, इसका मतलब क्या हो गया? ये ट्रू हो गया, T2 की जगह T3 आ गया, T2 की जगह T3 आ गया. तो T1 T3 belongs to R और this imply R is transitive. Since it is reflexive, symmetric and transitive, hence it is an equivalence relation. ये लिख जरूर देना लास्ट स्टेप के अंदर, हाफ मार्क इसका भी बोर्ड में रखा गया है. सिर्फ ये 3 चीजें नहीं करके दिखानी है, उसको थ्योरेटिकली प्रॉपर लिखकर भी बताना है. So the topic and the chapter is little bit abstract, but अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक को लगाएंगे और ध्यान से समझेंगे, it require more of a common sense. तो लॉजिक और कॉमन सेंस अगर आपका अच्छा है, बहुत इजीली आपको ये चैप्टर समझ आने वाला है. यहां हमें किस फंक्शंस में याद है ना, 11th में थोड़ा मैं मानता हूं डिफिकल्ट था, 12th का फिर इजी है, क्योंकि 11th में हमें वो डोमेन, को डोमेन, रेंज, वो सब निकालना पड़ता था. देयर वर टिपिकल अप्रोचेस फॉर सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. 12th में कम से कम ये आसान चीजें हैं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं निकालना है. सिंपल प्रूविंग के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो विद प्रैक्टिस आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. Show that the relation R in the set 1 to 3 given by, देखो रिलेशन क्या आपको एक डिफाइन कर रहे हैं, 1 1
2 2, 3 3, 1 2, 2 3। और ये कहा है रिलेशन आर इन द सेट। इन द सेट का मतलब क्या हो गया? अगर ये सेट ए है तो ए से ए में हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो ये रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव होने का मतलब क्या होता है? 1 1 इसमें है, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ये तीनों होने कंपलसरी हैं। तो सिंस 1 1 belongs to R, 2 2 belongs to R, and 3 3 also belongs to R, this imply R is reflexive. अब जरा ध्यान से सोचिए, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। फॉर नॉट सिमेट्रिक, हाउ विल यू जस्टिफाई? एनीवन? सर उसमें 1 2 है पर 2 1 नहीं है। यस, सिंपल। देखो ऑब्जर्वेशन है, 1 कॉमा 2 तो इसमें है, और सिमेट्री क्या कहती थी कि इसका रिवर्स भी लिख दूं तो वो भी होना चाहिए, बट वो तो इसमें अवेलेबल नहीं है। एक भी काउंटर एग्जांपल आ गया तो मुझे इसको सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसकी जगह अगर ये कह देते एग्जांपल में कि 2 to 3 तो गिवन है बट 3 to 2 नहीं है, कोई भी एक काउंटर एग्जांपल इज सफिशिएंट। दिस इंप्लाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। और फॉर नॉन ट्रांजिटिव, सोचिए जरा एग्जांपल। 1,3 नहीं है। यस, फिर मैंने इन्हें देखकर आइडिया लग रहा है, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, बट 1 से 3 डायरेक्ट अगर मैं देखता वो नहीं है। दिस इंप्लाई आर इज नॉट ट्रांजिटिव। डन। तो नो रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दिस। फिर मैं बता रहा हूं, वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल कॉमन सेंस को यूज करेंगे, आराम से ये चैप्टर होगा, बट बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड अटेंटिव। इनफैक्ट एक बार बोर्ड में 1 मार्कर क्वेश्चन आ गया था, राइट स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन in the set A is equal to 1 2 3. Anyone? Smallest possible equivalence relation लिखना है। 1 1 2 2 3 3। चेक करिए, रिफ्लेक्सिव होना कंपलसरी है, 1 1 2 2 3 3 तो आएंगे ही। अब बात करी गई है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए। अगर आप 1 चेक 2 और करिए, इसमें 1,2 टाइप मैंने रखा ही नहीं, तो 2,1 वाला प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मैंने ये दोनों इसमें जब रखे ही नहीं है तो 1,3 वाला इशू नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट वो सब चीजें वैसे रूल्ड आउट हो गई। तो इसीलिए ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, ये आपका सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अंडरस्टैंड दैट केयरफुली। होमवर्क में सोचना, लार्जेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन वो क्या होगा? सर ए क्रॉस से हो जाएगा पूरा। यस। सो वो आंसर में क्लियर है, एक्चुअल में वो ए क्रॉस ए आ जाएगा। दैट्स इट।
show that the relation are in the set Z, integers की बात हो रही है, given by a comma b such that, इस नोटेशन को याद करो 11th में करा हुआ है, such that क्या कंडीशन दी है, 2 divides a minus b, show that it is an equivalence relation। एक तो चीजें आसान बना दी क्वेश्चन की लैंग्वेज में, मुझे पता है कि ये इक्विवेलेंस आना है, मींस इट हैज टू बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बस वो करके दिखाना है। तो हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, फॉर रिफ्लेक्सिव, बहुत ध्यान से समझना, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, बी की जगह ए होना चाहिए यहां पर, तो बी की जगह ए का मतलब क्लियरली 2 डिवाइड्स a माइनस ए, ये ट्रू होता है, दैट इज 2 डिवाइड्स 0। इन अदर वर्ड क्या हो गया, यहां एक्चुअल में b आना था, मैंने b की जगह a लिख दिया, b की जगह a लिख दिया, a कॉमा a बिलोंग्स टू r आ गया, और दिस इंप्लाई r इज रिफ्लेक्सिव। चेक करो ये ट्रू कैसे है, 2 डिवाइड 0, 2 डिवाइड 0 आप ऐसे कर रहे हैं तो 0/2 की बात हो रही है, विच इज वेल डिफाइंड। अगर मैं ये कह दूं 0 डिवाइड्स 2, तो 0 डिवाइड्स 2 का मतलब क्या हो गया, वो ये है, दिस इज नॉट डिफाइंड। फॉर सिमेट्रिक स्टार्टिंग कैसे करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये देखिए ऊपर रिलेशन की डेफिनेशन से, इसका मतलब मुझे ये पता है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, छोटा सा एक स्टेप कर रहा हूं, ये ट्रू होगा या नहीं होगा, अगर 2 डिवाइड करता है 6 को, मतलब ये, तो क्या 2 माइनस ऑफ 6 को डिवाइड करता है या नहीं करता, तो a माइनस बी की जगह अगर b माइनस ए कर दिया, मतलब अगर यहां ऊपर 6 होता तो मैंने नीचे -6 कर दिया, तो ये भी ट्रू आ गया। बट ये लिखने से बेनिफिट क्या हुआ, 2 डिवाइड्स b माइनस ए, ये a माइनस बी की जगह ऊपर b माइनस ए हो गया, मतलब a और b की पोजीशन इंटरचेंज हो गई, दिस इंप्लाई b कॉमा a बिलोंग्स टू r, a कॉमा b बिलोंग्स टू r ने इंप्लाई कर दिया b कॉमा a बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाई r इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी में पहली बात, आपको एक थर्ड एलिमेंट सी भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अभी तो सिर्फ ए और बी मुझे पता थे, तो ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स में हैं ये सारे एलिमेंट्स। फिर मैंने कहा लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए टू बी गए एंड बी टू सी गए, अल्टीमेटली पहले ही मन में ले आओ कि आपको ए टू सी बिलोंग्स टू आर बताना है कि दैट दिस इज ट्रू। अब जरा पहला इसका मतलब क्या आ गया, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब 2 डिवाइड्स
a माइनस बी, और इसका मतलब क्या होगा बाद वाले का, दैट 2 डिवाइड्स b माइनस सी। ये डेफिनेशन को बस एक बार अपने माइंड में ले आओ, सब कुछ रोल इसी डेफिनेशन का यहां चल रहा है। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा, दिस इंप्लाई 2 डिवाइड्स देयर सम एज वेल। लॉजिकली सोचिए, अगर 2 है 6 को डिवाइड कर रहा है और 2 है 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 है इन दोनों के सम को भी तो डिवाइड करता है। तो मैंने यही तो चीज लिखी है यहां, b से b कैंसिल, इसका मतलब फाइनली क्या लिखा गया, 2 डिवाइड्स a माइनस सी ऑल्सो, 2 डिवाइड्स a माइनस सी, b की जगह c आ गया, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r लिखा गया, और दिस इंप्लाई r इज ट्रांजिटिव। r बीइंग, ये लिख देना पेपर में लास्ट स्टेप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव is an equivalence relation, hence proved। तो ये 3 मार्कर बोर्ड का क्वेश्चन है, अभी तक जैसे 4 मार्कर में रहा था। लास्ट मिनट एक ये छोटी सी चीज देखिए, थिंक लॉजिकली, इस 2 की जगह क्वेश्चन में 2 की जगह मान लो 3 होता या 4 होता या 10 होता, it doesn't make any difference to my way of presentation। मतलब 2 की जगह मैं कोई भी नंबर यहां लिख देता, m डिवाइड्स a माइनस बी, दैट विल बी अगेन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो लुक एट द प्रेजेंटेशन, किस तरह से एक्सप्रेस करा है। मेनली और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो कंपैरेटिवली इजी होगा, मेन जो फोकस है और जो लिखना और लॉजिक रहेगा सोचना, वो ट्रांजिटिविटी में आने वाला है। सो कंप्लीट टिल दिस इन योर होमवर्क, एक्स्ट्रा मैं भी आगे ये नहीं कुछ भी करवा रहा हूं। इफ पॉसिबल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू दिस फर्स्ट पार्ट एंड दिस पार्ट इन योर होमवर्क, दैट्स इट। 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। एंडिंग द क्लास, यू कैन लीव द मीटिंग, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, else you can leave। Muskan and Srishti, leave the class. Kaushal as well.